नाज़रीन आदाब, उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं बुंदेलखंड, जहाँ के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी झांसी में अभी जो है राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं। साहस के प्रतीक तलवार ग्रहण कर रहे हैं। भारत के उज्जवल भविष्य का परिचायक एनसीसी में बालिकाओं की उपस्थिति, 33 अलग अलग जिलों से ये बालिकाएं कैडेट यहां पर पहुंची हैं। It's a proud moment for all these young girls and also for the Prime Minister. बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। राष्ट्र का नमन वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को। The Prime Minister, after witnessing the retreat ceremony on the ramparts of the fort, now makes his way towards the main venue where the event will further take place. It's a cloudy day here, as we shared earlier with you, so we can't see the coppery hues of a setting sun. But man-made light, beautifully positioned, artistically done, lighting up the fort in all its glory. झांसी के ऐतिहासिक किले की प्राचीर से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को नमन करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजन स्थल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहां वे रक्षा क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में देश के विकास को परिलक्षित करती हुई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। And as we foreground and celebrate the role that every citizen, irrespective of gender, plays in dedicating and submitting of themselves to defend the nation, we also celebrate the increasing opportunities being given to women. Today, the nature of threats, those that may cause harm to the fundamentals of any nation, has expanded way beyond to just a threat to its boundaries. And that's why it's important that each one of us, in our own way, foreground India's safety and security. माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है और उसी की एक झलक आज ऐतिहासिक झांसी के किले की पृष्ठभूमि में निचले भाग में स्थित मुख्य आयोजन स्थल पर देखने को मिलेगी, जहां पर न केवल देश में निर्मित रक्षा उपकरणों को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, बल्कि आने वाले दिनों में ये भी संभावनाएं बन रही हैं कि भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात करने की स्थिति में भी पहुंच सकता है। And when we talk of Atmanirbhar Bharat, we know that we cannot be independent truly till the women in our country are brought forward in all the avenues to achieve, to be successful. Women and the important roles they play in ensuring that the fabric of the nation stays strong is well recognized. In present times, with different Supreme Court rulings and government policies, the opening up of different arms of the uniformed service for women, Sainik schools taking in girls for military training and education, and social and parental mindsets being more accepting and open about women in uniform, we celebrate women's contribution and achievements in defending the nation. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला संतुलित रफ्तार में मुख्य आयोजन स्थल की ओर अग्रसर, ऐतिहासिक झांसी के किले से नीचे की ओर मंथर गति से आगे बढ़ता हुआ
15 अगस्त 2020 को यानी पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में एनसीसी के सीमांत और तटीय क्षेत्रों में विस्तार की बात कही थी। आज रानी लक्ष्मीबाई के 193वीं जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष समारोह में 100 नए को एजुकेशनल सैनिक स्कूल्स बनाने की भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय आधिकारिक घोषणा करेंगे। ये सभी स्कूल अगले 2 वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्य सरकारों के सहयोग से विकसित किए जाएंगे। में 16 specially placed cameras by Doordarshan. To give you the best views, the best shots. 16 cameras, our expert cameraman positioned. And as the Prime Minister's carcade makes its way to the main venue, which is here, right at the foot of the hill on which the fort of Jhansi is situated. This is where everybody has gathered. The Prime Minister will be coming here, will address the gathering, will inaugurate many more schemes, all helping us become more self-reliant. And the whole area lit up. When we look back at 1888, when the Indian Military Nursing Service was formed, commencing the role of women in the Indian Armed Forces, to today, the year 2021, we find that exposure, reach and participation of the women has increased so dramatically. And as if everything here is celebrating that participation. राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के समारोह के तहत किया गया है। 3 दिवसीय ये समारोह जो कि आज अपनी परिणति पर पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक झांसी शहर में आगमन हुआ है और अब से कुछ देर पहले उन्होंने झांसी किले की प्राचीर पर राष्ट्र की ओर से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को नमन किया और अब उनका आगमन हो रहा है मुख्य आयोजन स्थल पर। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे अपने देश के प्रधान सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मंच पर पधार चुके हैं। मंच पर आसीन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, भारत के आदरणीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, एमएसएमई राज्य मंत्री आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, हमारी इसी झांसी का बतौर सांसद प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय श्री अनुराग शर्मा जी और इस समारोह में पधारे सभी देवियों और सज्जनों का मैं शम्मी नारंग अपनी सहयोगी होस्ट गीतिका गंजू के साथ आप सभी का राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे अभिनंदन स्वरूप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक सुंदर चित्र भेंट करें।
और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि हार्दिक अभिवादन स्वरूप हमारे सबके प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी को एक उतना ही खूबसूरत ब्रास स्टैचू भेंट करें। देवियों और सज्जनों, आप सबको सादर प्रणाम। झांसी की ऐतिहासिक धरती पर मैं गीतिका गंजू आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज का ये दिन इस धरती की मिट्टी की तरह ऐतिहासिक है। आज के दिन हम सभी भारतवासी आत्मनिर्भरता की ओर एक निर्णायक कदम उठाने जा रहे हैं। निश्चय है कि आने वाला भविष्य यशस्वी होगा। आज ये हमारे लिए बेहद गर्व का विषय है कि हमारे बीच भारत के प्रथम और वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी मौजूद हैं। पूरी विनम्रता के साथ आप जैसे सक्षम और कुशल सर्वोच्च सैन्य अधिकारी से मैं निवेदन करूंगी कि आप स्वागत भाषण दें। सम्माननीय जनरल बिपिन रावत जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पाटिल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमएसएमई श्री अनुराग शर्मा, सांसद झांसी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल चौधरी, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, उप सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, मीडिया कर्मी, शुभ संध्या। भारतवर्ष की बुंदेलखंड की इस भूमि पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विशेष पहचान दिलाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के साथ रक्षा मंत्रालय ने रानी के अदम्य साहस और वीरता को नमन करते हुए बुंदेलों का ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों में एकता और अखंडता की भावना उजागर कर दी है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हर देशवासी और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में देश सर्वप्रथम के अटल इरादों से अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया, उन सभी को सम्मानित करने की पहल बहुत ही सराहनीय है। रानी की गाथाओं का वर्णन समय मांगता है, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ पंक्तियों में मैं वर्णन करना चाहूँगा। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, वो तो झांसी की रानी थी। अपने घोड़े पर सवार दारो दांतों बीच लगाम संभाले, तलवार से वार करते अंग्रेजों पर लगातार वार करते हुए साहस और बलिदान का अचंभित करने वाला नज़ारा इतिहास के पन्नों में रचा है। पीठ पर बंधे उनका नन्हा पुत्र दामोदर रानी की वीरता, साहस और बलिदान को इतिहास के पन्नों में समाता देखता रह गया। महारानी की प्रेरणा से नारी शक्ति का साहस आज की नारी में प्रतीक हो रहा है। आज का ऐतिहासिक पर्व देश सर्वप्रथम यानी नेशन फर्स्ट
और तिरंगा का सम्मान करना हम सभी को महत्वपूर्ण संदेश देता है। आगे की प्रक्रिया इस दिवस की महत्ता आप सभी को याद दिलाएगी। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रावत आपके प्रेरणात्मक संबोधन के लिए। देवी और सज्जनों, अब आपके समक्ष प्रस्तुत है एक फिल्म जो आईना है देश में एनसीसी की बहुमूल्य भूमिका और सैनिक स्कूलों में हाल ही में शुरू हुए बालिकाओं के प्रवेश से संबंधित माननीय प्रधानमंत्री जी की अतुलनीय परिकल्पना का। तो आइए देखते हैं मोदी जी की इस बेमिसाल सोच पर आधारित इस फिल्म को। सैनिक स्कूल भारतीय सेना और देश के शौर्य की प्राण शक्ति है। सैनिक स्कूल मजबूत और बौद्धिक क्षमता के श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण कर रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा कर एक नई क्रांति का आह्वान किया है। अब हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश में नए सैनिक स्कूल खुलेंगे। डे स्कॉलर्स को भी दाखिला मिलेगा। 50% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। हर सैनिक स्कूल एक खेल में दक्ष बनाया जाएगा। निजी संस्थाओं और एनजीओ के साथ मिलकर सरकार सिर्फ 100 नए सैनिक स्कूल ही नहीं बनाएगी, बल्कि सारे देश में राष्ट्र प्रेम की एक नई ज्वाला प्रज्वलित करेगी। ये सारे ऐतिहासिक बदलाव सिर्फ अगले 2 साल में ही पूर्ण किए जाएंगे। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई, माता भाग कौर और खिलाड़ी चेन्नम्मा जैसी वीरांगनाओं से प्रेरणा लेती आज की सशक्त लड़कियों के लिए भी अब सैनिक स्कूलों में प्रवेश के द्वार खुल गए। अब हमारे देश की लड़कियां भी बालकों के संग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। ये कदम लड़कियों को न केवल नई शिक्षा, नया दृष्टिकोण, नई ऊर्जा देगा, बल्कि उनके लिए नई राहें भी खुलेंगी। ये कदम लड़कियों को भारतीय सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने में सहायक सिद्ध होगा। एनसीसी अनुशासन की पहचान, देश की शान, दुनिया में सबसे बड़ा गौरवपूर्ण यूनिफॉर्म्ड युवा संगठन एनसीसी अब और सक्रिय, सुदृढ़ और साहसी बनेगा। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की है। एनसीसी की ट्रेनिंग, उसकी क्षमताओं को भी सरकार तेजी से बढ़ा रही है। अब सभी एनसीसी कैडेट्स को पहली बार सिमुलेटर द्वारा आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए फायरिंग सिमुलेटर की संख्या 1 से बढ़ाकर 98, रोइंग सिमुलेटर 10 से बढ़ाकर 71, फ्लाइंग सिमुलेटर 6 से बढ़ाकर 50 कर दिए गए हैं। अब सिमुलेटर पर आधुनिक प्रशिक्षण पाकर हमारे एनसीसी कैडेट्स देश के लिए शूरवीर जांबाज योद्धा बनेंगे। जब ये फोर्सेस में शामिल होंगे तो ये प्रशिक्षित कैडेट्स भारतीय सैन्य बल को और प्रबल करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देश के समस्त सीमावर्ती क्षेत्रों के समीप मुख्य तालुकों के हजारों स्कूलों में एनसीसी की यूनिट स्थापित करने का फैसला करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया। देश के बॉर्डर के निकट बसे बच्चों में इस कदम से देश प्रेम की नई ज्वाला जगी है। एनसीसी कैडेट्स अब सीमाओं के प्रहरी के रूप में उभर रहे हैं और हमारी सीमाओं के सुरक्षा बल को एक युवा सैन्य कवच प्रदान कर रहे हैं। हर एनसीसी कैडेट एनसीसी से आजीवन जुड़ा रहना चाहता है। वंस एन एनसीसी कैडेट ऑलवेज एन एनसीसी कैडेट। माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भी एक पूर्व एनसीसी कैडेट हैं, आज एनसीसी अलुमनाई एसोसिएशन का लॉन्च कर रहे हैं। अब पूर्व एनसीसी कैडेट्स को फिर एनसीसी से जुड़ने के द्वार खुल जाएंगे और देश को नए परिपक्व मार्गदर्शक और मेंटर्स मिलेंगे। आने वाले समय में भारत को और भी शक्तिशाली बनाएगी, ये आने वाला समय सिद्ध करेगा। हम झांसी में हैं और अब जिन
दो वीर बालिकाओं को मैं मंच पे आमंत्रित करने वाली हूँ। इस वजह से इतना बनता है कि मैं आप सबके समक्ष इस प्रसिद्ध कविता की 4 पंक्तियाँ रखूं। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी ही एक भारत की वीर पुत्री को अब मैं मंच पे आमंत्रित करने जा रही हूं, कैडेट अवनीत कौर, जो अब सिम्युलेटर उद्घाटन समारोह का संचालन करेंगी। प्लीज वेलकम कैडेट अवनीत कौर। राष्ट्रीय कैडेट कोर संगठन विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन है। एनसीसी की सभी यूनिटें सशस्त्र बल में युवाओं को करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। प्रधानमंत्री रैली 2021 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिम्युलेटर्स को भारी संख्या में बढ़ाया था, जिसमें फायरिंग सिम्युलेटर्स को 1 से 98, रोइंग सिम्युलेटर्स को 10 से 71 एवं माइक्रोलाइट सिम्युलेटर्स को 6 से 50 कर दिया गया। इससे एनसीसी प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा बेहतर परिणाम पाए जा सकेंगे। इसके लिए हम सभी कैडेट्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आएं और माननीय प्रधानमंत्री जी से इन सिम्युलेटर्स का उद्घाटन करवाकर हमें गौरवान्वित करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब मैं भारत की एक और वीर पुत्री को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी, सीनियर अंडर ऑफिसर निदा खान, जो अब एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन स्थापना समारोह का संचालन करेंगी। सीनियर अंडर ऑफिसर निदा खान। हम सभी के लिए यह बहुत गौरव की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि खुद एक पूर्व एनसीसी कैडेट हैं, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। एनसीसी और एनसीसी कैडेटों के प्रति उनके मन में हमेशा से एक विशेष प्रेम रहा है। इसके लिए मैं सभी एनसीसी कैडेटों की तरफ से उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज इस वीर और ऐतिहासिक भूमि पर हम एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी से कराएंगे। एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन भारत सरकार एवं एनसीसी के महानिदेशालय के संयुक्त प्रयासों का एक बेहतरीन परिणाम है। इसका उद्देश्य पूर्व एनसीसी कैडेटों एवं वर्तमान एनसीसी को एक मंच पर लाकर राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य की ओर अग्रसर करना है। ऐसा करने से पूर्व एनसीसी कैडेटों के कौशल विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अब मैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया मंच पर आएं और माननीय प्रधानमंत्री जी से एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन का आईपैड पर बटन दबाकर उनका प्रथम नामांकन दर्ज करें। महानिदेशक से आग्रह करती हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रथम सदस्यता कार्ड का एक सांकेतिक प्रारूप भेंट करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देवी और सज्जनों, अब रक्षा मंत्रालय की विभिन्न उपलब्धियों
और अभूतपूर्व कार्यों से संबंधित कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच पर एक बार फिर से आमंत्रित कर रहा हूं कर्नल राजेश जिंदल जी को। जय हिंद श्रीमान। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोलीसा शोभित हिंदुस्तान हमारा। भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल जी के ये अमर शब्द, कवि इकबाल का वो जय घोष, जी हां सही समझे आप लोग, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारे जहां से अच्छे हिंदुस्तान की गौरव गाथा बयां करने के साथ साथ ये उद्गार, ये शब्द भारतीय सेनाओं के स्वर्णिम इतिहास को भी खुद में समेटे हैं। देवी और सज्जनों, इतिहास सैनिकों के शौर्य का, स्वाभिमान का, राष्ट्र प्रेम और बलिदान का। इन्हीं सैनिकों को आत्मनिर्भरता के माध्यम से एक और सशक्त बनाए जाने के लिए कीर्तिमान स्थापित करता हमारा देश। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम की हमारी भारतीय संस्कृति, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वदेशो भुवनत्रयम का संदेश भी खुद में समाहित किए है। वो परंपराएं जो हमें सिखाती हैं कि अपना देश ही तीनों लोकों में श्रेष्ठ है और इस देश को मजबूत बनाना हम सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि एक सशक्त राष्ट्र ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के अनुरूप दुनिया की सेवा कर पाएगा। तो नाज़रीन, आप बराह रास्त झांसी से देख रहे थे राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व, जहां के अब से कुछ देर के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के मौके पर ये ख़ास करके जो ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, उसके अख्तितामी इजलास से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। और आप इसको खिताब को, वज़ीर आज़म के खिताब को दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क पर, ख़ास करके दूरदर्शन न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।